ट्रस्ट खुद के ऊपर, डायरेक्शन, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इन दोनों को पाने के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। आज के टाइम में सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड कंपैरिजन। गलत कर रहा है, ये तुम गलत कर रहे हो, ये चीज ऐसे नहीं होती है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। और यू शुड स्टार्ट कोटिंग योर टाइम्स कि मेरे टाइम पे ऐसा होता था। Hello and welcome to ABCD Talk Show, where we bring your voice that are shaping the future of education, child development and personality. मैं हूं अमीशा आपकी होस्ट और टुडे देयर इज अ गेस्ट who is someone proves that teaching is not just a profession, it's a mission. And he is a mathematician fun to guiding student towards their highest potential. He been creating impact inside and outside the classroom. Joining us from UAE, he is a dedicated mathematician faculty member and a respected educational expert. Please welcome Mr. Ankur Tripathi. Ankurji, thank you for joining us Thank today. you so much. Thank you, ABCD, for this platform. It's always a great pleasure to connect with the students and all. Thank you so much. Yes, sir. Sir, जो आपको नहीं जानते, can you start sharing a little bit about your role as a faculty member and an education expert? Sure. So, I'm Ankur Tripathi. I have been into teaching from almost 15, 16 years. I did my engineering long back. So, engineering के बाद usually it's like I did my engineering in computer science, so went into software engineering field. बट वो एक था शुरू से ही थोड़ा सा लोगों को गाइड करना, लोगों को मेंटोर करना फ्रॉम माय कॉलेज डेज इटसेल्फ। तो अपने आप वो इंक्लिनेशन टीचिंग की तरफ आया एंड आई मूव्ड इनटू टीचिंग। And since then, it's been a journey from I started from Punjab, Patiala, then moved to Chandigarh, then moved to Kota, and now this journey has taken me to UAE. So uh, I am a mathematics faculty, and I am working here in an educational institute as an academic head. So usually the day is classes, students की mentoring and थोड़ी academic strategy बनाना for the students, for the organization. So this is how the entire thing has been going right now. So, what inspired you to choose the education sector? My college days itself, I felt that we have to connect with students, एक emotional level पे connect करके उन and having some empathy so that we can understand them, what are their academy needs, and then we can give them those kind of solutions. So although engineering time पे I was just a student, but वो एक zeal अपने आप आ जाती है कि you get to know कि people are getting inspired from you, from your words, from your acts. And if you have that thing, so why not go ahead as a full-fledged teacher and everything. So I think वो एक चीज थी जिसने मुझे थोड़ा सा ड्राइव किया। सर, क्या आप हमेशा ये एजुकेशन में थे या आप उससे पहले कोई और फील्ड में भी थे? सो एज आई मेंशन, मैं इंजीनियरिंग के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आई वर्कड इन एन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट 3.5 years. बट इट वाज गेटिंग क्वाइट मोनोटोनस फॉर मी। वो एक जो इंट्रैक्शन जो लोगों के साथ करके मज़ा आता है, वो शायद थोड़ा मिसिंग था एलिमेंट। एंड देन आई स्विच्ड माई करियर। आई स्विच्ड अराउंड 2010। सो वहाँ से फिर मेरी एजुकेशन इंडस्ट्री में जर्नी बिगिन हुई। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years नाउ। Yes, sir, that's really great. Can you share one like early career experience that will shape and approach the working with students? Course when I got was when I was in fourth year of engineering. uh, एक फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर जो इंजीनियरिंग का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर आ जाता है। आपके आसपास के लोग भी आपसे पूछने लगते हैं जॉब लग गई क्या, कहीं प्लेसमेंट हुआ क्या। एंड देन द कैंपस प्लेसमेंट, द कंपनीज आर कमिंग, hardly 3 or 4 people are getting recruited, and you after some time you start feeling dejected, you start feeling कि यार मेरा कहीं नहीं हो सकता क्या, मतलब क्यों है ऐसा, क्या हो रहा है। आई थिंक उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था अपने आप को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना। एंड व्हाट आई डिड वाज, आई न्यू आई हैड द पोटेंशियल, बट मे बी जो कंपनीज आ रही हैं शायद उनको जो चाहिए वो मेरे अंदर अभी नहीं है क्वालिटी। बट आई रिमेंबर आई wasn't selected in any campus recruitment,
बट आई वॉज गिविंग गाइडेंस टू माई जूनियर्स जो थर्ड ईयर में थे, और उनको मैं बता रहा था कि जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है, कैसे करते हैं। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि पीपल डोंट वांट कि द पर्सन हु इज टीचिंग अस शुड बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। दे जस्ट वांट दैट इंस्पिरेशन कि हाँ यार, ये जो चीज़ बता रहे हैं सही है और मेरे काम आ सकती है, इनके काम नहीं आए। मे बी सचिन तेंदुलकर के कोच रामाकांत आचरेकर थे, वो शायद खुद इतने अच्छे क्रिकेटर नहीं रहे होंगे, बट ही शेप सचिन तेंदुलकर इन अ वे विच वी ऑल नो इज अ लेजेंड नाउ। सो आई थिंक वो एक इंसिडेंस था, वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो दुनिया चाहती है, जिस तरह से कॉलेज में माहौल है, हम उसमें ही ढल सकें। देयर इज ऑलवेज सम अदर अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर टैलेंट, योर पोटेंशियल, जो आपको हरदम मिलेगी। क्या आप अपने कॉलेज में लाइक ऐसा एक दिन बता सकते हैं जो स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकता है, जैसे अप्रोच या इन्फ्लुएंस करता हो? थिंक कॉलेज टाइम में मैं हरदम थोड़ा सा अलग रहा हूँ। कुछ ने ये भी कहा कि भीड़ से हटके है, विच वॉज पॉजिटिव थिंग। कुछ ने कहा पागल सा है, विच वॉज आई टुक एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सो आई थिंक आज की जनरेशन के लिए अपने टाइम से अगर मैं एक चीज़ रिलेट कर पाऊँ तो वो ये रहेगा कि हमें दूसरों के विचारों से, दूसरों के ओपिनियन से अपने लिए ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, विच इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस कि जस्ट बिकॉज कि कोई ये काम कर रहा है हमें भी वो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि उसको उसमें कोई प्रशंसा मिल रही है, ख्याति मिल रही है, हमें भी उधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के काम हैं, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। सो मुझे अपने पोटेंशियल को जानते हुए उसमें अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाना है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है इस जनरेशन के लिए। और जो मैं अपने टाइम से भी मैंने देखा है, मेरे टाइम पे मेरे साथ के ऐसे कई दोस्त थे जो शायद उतने अच्छे इंजीनियरिंग में नहीं थे, बट टुडे दे आर लीडिंग देयर टीम्स, टुडे दे आर एट very good position. So it never matters about these campus placements, and yes, we should do the best for these things. But if not, there are a lot of other opportunities where we can go ahead and build our career. So I think that has been the biggest thing I would say कि but आज के students को ध्यान रखना चाहिए। Right, right. So students would like make a plan B, plan C as if it won't be their career. मतलब अगर वो नहीं क्या बोलते सक्सेस होते, या अगर ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो मे बी शायद वो किसी और पे सक्सेस हो सकते हैं। दैट्स द थिंग। यस, आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होनी चाहिए। राइट। हमारे जो करंट समाज है, जो करंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसमें सक्सेस की डेफिनेशन इज रिलेटेड टू मनी एंड फेम। आई राइट। थिंक जिसके पास मनी नहीं भी है, वो अगर अपने आप में अपने आप को सक्सेसफुल मान रहा है, लेट्स से आज आपकी टीम है, आपको ये लग रहा है कि हम लाइफ्स चेंज कर रहे हैं, हम लोग लोगों को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देके उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं। आज मैं हूँ, मैं अपने आप को अपने पैरामीटर में सक्सेसफुल मानूंगा, ना कि किसी और के पैरामीटर में जो ये कहेगा कि यार तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के टीचिंग में आ गया। तो दैट इज देयर पर्सपेक्टिव, फॉर मी इट्स अ बिग थिंग। मेरे लिए इट्स अ सक्सेसफुल थिंग कि मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ कैसे शेप होती गई, आज मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। तो दैट इज फॉर मी। सो आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन हमारे लिए हमारे खुद के अचीवमेंट से होनी चाहिए, ना कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से। Sir, like if you had to describe your role to the student in one line, so what would you will say to them? I think I would sum up in three C's. It should be, firstly, it should be confidence. Second should be clarity. And third, most important, character. So अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है और कैरेक्टर है, ये तीनों चीज़ें आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगी। What do you think like personal development is important as an academic for a student? पर्सनल डेवलपमेंट में मुझे आज के टाइम के हिसाब से लगता है स्टूडेंट्स के अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो आज के टाइम में इमोशनली स्टेबल नहीं है, उसका करियर, उसकी आगे की लाइफ बहुत फ्रेजाइल हो जाएगी। सो फॉर मी आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है,
तो सबसे पहले यू हैव टू बिकम वेरी इमोशनली स्टेबल। छोटी मोटी चीज़ों से यू शुड नॉट गेट पर्टर्ब्ड कि ये नहीं हुआ, इसने मुझे छोड़ दिया, ये जॉब मुझे नहीं मिली। इन सब चीज़ों में आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आई थिंक अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज़, ये जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा फाउंडेशन है, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर जी। आपने इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर लिया है, उसके ऊपर आप कोई भी स्किल सीखते जाएंगे, आप हरदम ग्रो करते जाएंगे। यू कैन शेयर एनी मोमेंट दैट कि अगर स्टूडेंट लाइफ कंप्लीटली चेंज हुआ हो, जैसे कि बाहर का सपोर्ट लेके, लाइक कोई बाहर से एक्टिविटीज करके देयर लाइफ हैज चेंज, ऐसा कोई मूवमेंट हुआ हो? Yes, I think I was in Chandigarh with an educational institute. I remember Hina ma'am was also there at that time, and we used to support a lot of students. But there was one student, I can't name him, but he was he had the potential. बहुत अच्छा talented बच्चा था. Academically, he was doing good, but when I was interacting with him in the class, I felt कि इसके अंदर वो स्पार्क है, इसके अंदर वो एकेडमिक जील है, ये कुछ कर सकता है, बट ये शायद अभी शरारतों और मस्तियों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। एंड आई रिमेम्बर कि हमने उसको किसी तरह से आउटसाइड सपोर्ट दिया। आउटसाइड सपोर्ट के साथ साथ आई वॉज ऑल्सो वेरी एम्पेथेटिक टू हिम, एंड नॉट जस्ट एम्पैथी बट एक कम्युनिकेशन था। तो मुझे याद है कि एक साल वो बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, बिकॉज ही ऑलवेज फेल्ट कि आई एम गुड, बट द वे वी वर टेलिंग हिम, ही फेल्ट कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ क्या। तो वो आई थिंक कुछ महीने ऐसे थे कि ही फेल्ट कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मुझे गाइड कर रहे हैं। बट धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, इससे मुझे चीज़ों में अपने आप में अपनी एकेडमिक स्किल्स को बिल्ड करने में फ़ायदा मिल रहा है। एंड टुडे ही इज़ इन यूएस इन अ वेरी गुड कंपनी, इन अ वेरी गुड पोजीशन. Just couple of months back, he reached out to me कि sir, I lost contact with you for almost a year or so, but just want to express my gratitude कि किस तरह से giving that support, that emotional support, I was able to overcome all those challenges जिसमें मैं अपने आप को सोचता था कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, बट मैंने उन चीज़ों को ओवरकम किया एंड आई बिकेम सक्सेसफुल. आई थिंक that has been the incident when I've seen almost 180-degree change. Right, right. That's a really great experience you have had. So, according to you, what are the top life skills student must have before they graduate? I would sum it up in three letters. Mhm. Uh, Learned from the people like you, the women. So I have named it as SHE, she Okay. characteristic. So firstly, it would be self leadership. एक होती है लीडरशिप, एक होती है सेल्फ लीडरशिप। आप खुद अपने तरफ से अपने लिए इनिशिएटिव्स लो, बी अ लीडर इन योर ओन ways. So Mhm. firstly, it should be self leadership. देन आई थिंक हैबिट्स, हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। खराब आदतें लगना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी लगती हैं, Right. बट अच्छी आदतों को बनाना टाइम लगता है, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। सो आई थिंक सेकंड शुड बी हैबिट फॉर्मेशन, एंड थर्ड आई थिंक इमोशनल कंट्रोल होना खुद पे जी। बहुत जरूरी। सो आई वुड सम इट अप एज सेल्फ लीडरशिप, हैबिट फॉर्मेशन एंड इमोशनल कंट्रोल। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अंदर हैं, तो Mhm. डेफिनेटली आप आगे लाइफ में किसी भी अनसर्टेनिटी पे आप एक्सेल कर पाओगे। Do you think that the college should actively teach these skills? Yes, I have heard a couple of IIMs, they have started doing this Mhm. uh, emotional control के around, they have started doing these life skill courses. Yes, it's very much necessary at this point of time जहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को दुनिया के पैरामीटर में कंट्रोल कर रहे हैं, which builds peer pressure, which builds a different ecosystem around them. तो it's very important every college should teach these life skills. राइट, राइट। सो सर, आपके हिसाब से अर्ली मेंटरिंग या गाइडेंस स्टूडेंट के लॉन्ग टर्म सक्सेस को कैसे अफेक्ट करता है? जो अब तक मैंने बोला वही चीज है कि जी। एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर ट्रस्ट डेवलप होना, एक डायरेक्शन आना, और सबसे बड़ी बात सेल्फ अवेयरनेस। आई राइट। थिंक जैसे ही ये तीनों चीजें आ जाती हैं एक स्टूडेंट के अंदर, जी। ट्रस्ट खुद के ऊपर, डायरेक्शन, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हुँ। इन दोनों को पाने के लिए बहुत जरूरी है
अवेयरनेस। मैं खुद जानता हूँ अपने आप को, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, और मैं किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये चीज़ें अर्लियर ऑन से ही, कॉलेज टाइम से ही, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि स्कूल में जब वो बच्चों के अंदर प्यूबर्टी जैसे मेच्योरिटी डेवलप हो रही है, आई थिंक उस टाइम से ही ये स्किल्स डेवलप करनी शुरू करनी चाहिए, सो दैट आगे के जितने सेटबैक्स आएंगे लाइफ के, डेफिनेटली किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, उन सेटबैक से उभरने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, अपने लिए हरदम एक डायरेक्शन क्लियर रखना, और सेल्फ अवेयर होना। जैसे कि आजकल के स्टूडेंट बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया प्रेशर हो गया, जॉब कंपटीशन हो गया, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल हो गया। सो हाउ डू यू सी दिस अफेक्टिंग देयर कॉलेज जर्नी? I think social media has developed a form of comparison. It was developed in some other way. I remember अगर students ने movies देखी हो तो Facebook का जो origin था, that was on a very wrong note. उसको develop किया गया, and then it was कि we would connect with our friends. आज के टाइम में सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड कंपैरिजन। एक जो पूरा मॉडल है सोशल मीडिया के अराउंड, वो कंपैरिजन हो गया है। हम्म। जॉब मार्केट्स आज के टाइम में एनजाइटी को ब्रीड कर रहे हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आर गेटिंग वेरी एंग्शियस, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, अरे यार उसकी इतनी ज़्यादा में लगी, मेरी इतने कम में क्यों लगी। आई थिंक इसने बहुत ज़्यादा एनजाइटी बच्चों के अंदर पैदा कर दी है। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ इश्यूज current generation has sidelined a lot. I think it's from our times. I mean, I am millennial, so I would say कि millennials के time से ही, हमारे parents के time से ही mental issues have been very much sidelined। कि ह्यूमंस आर मोर, कि जो चीज दिख सकती है उस पे हमें कुछ करना चाहिए। मेंटल इश्यूज शायद दिखते नहीं हैं, हम्म। बट हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर्स में, हमारे बात करने के तरीके से, हमारे गुस्सा करने के तरीके से, ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं हाउ इमोशनली स्टेबल और अनस्टेबल वी आर। तो आई थिंक इन दिस करंट मार्केट, एंजाइटी, कंपैरिजन एंड जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत साइडलाइन हो गई है, विच हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स। उनका फोकस बहुत डाइल्यूट हो गया है, उनकी सेल्फ वर्थ उनको कम लगने लगी है, विच इज अ वेरी बिग चैलेंज इन द करंट सिनेरियो। सो सर, लाइक फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करें? जो कहते हैं ना कि वॉल है, दैट जी। इज कम्युनिकेशन। जी। अगर आज के फैकल्टी, these administrators, all these people who are touching students life, I think they have to be accessible to every student. You cannot create boundaries कि मैं इससे क्यों बात करूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो राइट। एडमिनिस्ट्रेटर हूं। आई थिंक बीइंग एक्सेसिबल, बीइंग एम्पैथेटिक, उनकी बातों को सुन के, इफ यू आर जस्ट, या वो सिर्फ आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स और आपने बोला और हाउ आर यू डूइंग, कैसा चल रहा है सब, कपल ऑफ क्वेश्चंस, दे वुड फील लिबरेटेड कि यार मैं इनसे अपनी बात कर सकता हूँ। एंड बात करने के बाद यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। वी कैनॉट सिंपली डिसरिगार्ड देयर इमोशंस कि सर मुझे ये रिलेशनशिप चैलेंज आ रहा है, ऑल्दो आई एम ए कॉलेज स्टूडेंट। एंड एक कॉमन टेंडेंसी होती है टीचर्स की कि अरे इस समय क्यों रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। I think we have to understand current trend. Students need emotional support. That's why they are into relationship, and that's why we should support them. We should be empathetic them. How to build their relationships, which would help them in their life. You cannot simply disregard their emotions. And third, I think every faculty, every administrator have to be proactive. This generation wants to be communicating. This generation wants कि मेरी बात सुन के उस पर कुछ एक्शन भी हो। तो आई थिंक प्रोएक्टिवनेस एक फैकल्टी के लिए बहुत जरूरी है। राइट, राइट सर। अंकुर जी, व्हाट रोल पेरेंट्स और गाइड गार्जियन प्ले ड्यूरिंग कॉलेज इयर्स? कैसा आई रोल थिंक प्ले करना चाहिए उनको? बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सालों से वो अपने बच्चों को दे हैव बीन सुपरवाइजिंग, बट आई हम्म। थिंक एट कॉलेज टाइम दे शुड लीव दैट सुपरविजन रोल एंड दे शुड कम इनटू सपोर्ट रोल।
राइट। बच्चों की चॉइसेस, बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए दे शुड एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम। दे शुड नॉट सुपरवाइज, दे शुड नॉट टेल कि ये तू गलत कर रहा है, ये तुम गलत कर रहे हो, ये चीज ऐसे नहीं होती है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। और यू शुड स्टार्ट कोटिंग योर टाइम्स कि मेरे टाइम पे ऐसा होता। आई राइट। मीन राइट। आज के टाइम में जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही, जिस तरह से एआई ने चीजों को चेंज कर रहा है जिस स्पीड से, मेरे पेरेंट्स, मेरे टाइम, ये सब चीजें अब बहुत साइडलाइन हो गई, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। थिंग्स आर चेंजिंग विद इन 6-7 months, सो आई थिंक पेरेंट्स शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। दे शुड बी, ओके तूने क्या सोचा है, ओके इसमें मैं कहाँ आ सकता हूँ तेरे, मुझे क्या करना चाहिए तेरे लिए। दैट शुड बी अ रोल ऑफ पेरेंट। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द करंट पेरेंट्स, क्योंकि वो एक इतने सालों से सुपरविजन में रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर फॉर एवरी पेरेंट। सर, क्या आपने नोटिस किया है कि डिफरेंस बिटवीन अर्बन, रूरल और अभी के फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट इन टर्म ऑफ रेडीनेस कैसे हैं? Yes, I think since I was teaching in India for almost around 10 years, and then overseas, maybe I have seen, I mean, I have taught in entire UAE, which is Dubai, Sharjah, Abu Dhabi. Then I have also taught in Qatar. I have also taught in some students in Saudi. Then India में अगर मैं कहूँ तो पूरा पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, इनफैक्ट टिल बैंगलोर। सो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक अर्बन स्टूडेंट है जो एक सिटी से आ रहा है, दैट स्टूडेंट हैज लॉट ऑफ एक्सपोजर। दे नो कहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं। रूरल स्टूडेंट अगर कोई गांव से या कहीं कोई Tier 2 Tier 3 सिटी से आ रहा है, दे मे नॉट हैव दैट एक्सपोजर, बट आई हैव सीन देम, दे हैव दैट ग्रिट। उनके अंदर वो जज्बा होता है कि नहीं करना है। आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। एंड जो आई थिंक आज कल की जो जनरेशन है, they are more into this, what we call as first generation college students. I think they are carrying immense pressure. So they should be ready to take off that burden and then move ahead in life. राइट। So this have been my experience, and हर किसी को अलग तरह का support चाहिए। जी जी सर, वन एडवाइस दैट यू विल गिव एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। जैसे मैंने 3 C's कहे, वैसे ही मैं कहूँगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक ऐसा रूटीन बनाना चाहिए जिसमें आपके पास 3 चीज़ें ज़रूर हों। आई वुड कॉल देम एज 3 M's। एक तो मूवमेंट, बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना, लोगों को इंस्पायर करते हुए अपने साथ जोड़ना कि चलो ये करते हैं, चलो लेट्स से बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, चलो वॉक पे चलते हैं। आई थिंक एक रूटीन जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट, एक माइंडफुलनेस, करंट सिनेरियो में स्टूडेंट शुड बी इमोशनली स्टेबल, एंड फॉर दैट माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। एंड थर्ड, आई थिंक every student, or I would say every human being has a tendency of mentoring someone. सो आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो अभी फर्स्ट ईयर हूँ, मैं किसी किसी को मेंटोर करूंगा। आपके पीयर में ही कोई ऐसा हो सकता है, जैसा भी हमने डिस्कस किया, रूरल से, अर्बन से, कोई भी कहीं किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है। आप अगर उसकी लाइफ चेंज कर सकते हो थ्रू मेंटोरशिप, आई थिंक दीज हैबिट्स विल शेप योर फ्यूचर। यू राइट। विल बी बिकमिंग अ ग्रेट लीडर, you would be a great human being, and it would change the entire journey of life. What excites you the most about being part of ABCD Learning Never Ends podcast series? आई थिंक सबसे पहले तो आई वुड से कि यू आर नॉर्मलाइजिंग दिस मेंटल हेल्थ कॉन्वर्जेशन एंड redefining success for students. I think that's the biggest takeaway from this podcast series, and which excites me a lot. As we have discussed in the upcoming episode, we would be discussing a lot on these mental health conversations and defining success parameters for students. I think this is one of the platform which would be the most exciting part about this. सर, स्टूडेंट को अपकमिंग एपिसोड सुनने रहने के लिए क्या रीजन या क्या होना चाहिए? This podcast series, every episode would act as a mirror. स्टूडेंट्स अपना रिफ्लेक्शन देख पाएंगे, और अगर आपको एक रिफ्लेक्शन मिलता है तो आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगा। सो आई थिंक अपने आप को इन एपिसोड्स में कहीं ना कहीं, या हो सकता है सभी एपिसोड्स में, आप अपने आप को पाएं,
और उन एपिसोड्स में अपने आप को देखने के बाद अपने लिए डायरेक्शन भी आई थिंक ये सीरीज देगी. सो आई थिंक एवरी एपिसोड वुड एक्ट एज अ मिरर, guide them towards their better self. Right, right. So, can you share one inspiring success story about you, like in teaching? एज अ टीचर तो हजारों कहानियां हैं, बहुत सारे लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं. Yes. बट आई थिंक रिमेंबर वन स्टूडेंट, ही वाज एक्सट्रीमली वेल इन his academics. He got a very good rank, went into IITs, and I think IITs में उसके साथ के सभी स्टूडेंट्स, सिंस ही वाज वेरी एकेडमिकली ब्राइट, सभी स्टूडेंट्स उसके साथ के किसी अच्छी जगह पे प्लेस हो रहे थे, बट स्टिल ही हैड दैट क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, कि मुझे ये वाली चीजें नहीं करनी. आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रिलियंट कोहर्ट. तो ही वेंट इनटू आईआईटीज में उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिला. एंड as soon as he completed his IIT, he joined an educational institute to become a teacher. I think that really inspires me because such students tell the world कि जरूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं मैं भी वही करूं, मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा. So जी, I जी. think that has really been inspiring for me. राइट सर, अभी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग सक्सेस के बारे में कि क्या क्लियर करना चाहिए, तो आप इस पे क्या बात करना चाहेंगे? सक्सेस इज क्वाइट लीनियर. उनको हुँ, ऐसा लगता है हम ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो उनको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन सी दिखती है राइट। कि जैसे जैसे हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे, हम अच्छी जॉब मिलेगी, हम फिर ये करेंगे, हम फिर कहीं और चले जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, एंड इट सीम्स वेरी लीनियर. आई थिंक द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट सक्सेस इज कंप्लीटली पर्सनल, ऑफन इनविजिबल, राइट। एंड वेरी मेसी. बहुत ही अजीबोगरीब सा ग्राफ बनता है किसी भी सक्सेसफुल इंसान के लिए. सो आई हुँ, थिंक दैट इज वेयर स्टूडेंट शुड फील कि कैसे, कहाँ पे हमें सोचना है अपने बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, सक्सेस लोग सोचते हैं कि जो दूसरे बोल रहे हैं वो है. तो हुँ। बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस आई फील करंट स्टूडेंट्स के लिए हैं. जी, जी। सर, वन क्विक फायर राउंड, आपका फेवरेट कैंपस स्पॉट? I think it was my college had that huge ground which was called as Agora, यस। where people can come meet, and we used to have those social events. So that has been my favorite spot in college. मॉर्निंग क्लासेस और इवनिंग क्लासेस? Of course, morning classes, because discipline starts with sunrise. राइट, राइट। सो वन बुक और रिसोर्स एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट? Atomic Habits by James Clear. वेरी ब्रिलियंट बुक. स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे कैसे आपके एक छोटे छोटे से चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जी। बड़ा चेंज ला सकते हैं. आई थिंक दैट इज द बेस्ट बुक. राइट, राइट। सो योर फेवरेट मोटिवेशनल कोट? I read it somewhere. It was, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. मतलब आप ऐसा ना सोचें कि जो मैंने गोल बनाया है मैं उस पर राइज कर रहा हूँ. इनफैक्ट आपको ये सोचना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं और उस पे इतना भयानक तरीके से गिरना है, जी। अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं अपने आप उस गोल तक पहुंच जाऊं. राइट, राइट। Mr. Ankur Tripathi ji, thank you so much for sharing your journey, insight and passion for guiding young mind. आज की कन्वर्सेशन एक रिमाइंडर है कि एजुकेशन सिर्फ ग्रेड्स या डिग्री का नाम नहीं है. It's about building the skills, confidence, and a mindset that prepares student for a life beyond the classroom. To our listener, remember ABCD stand for learning never ends, and every day is an opportunity to grow, explore, and become a better version of yourself. See you next episode. We will be keep bringing lessons that go far beyond textbook. Until then, keep learning, keep dreaming, and keep moving forward. Thank you so much.